నమస్తే అండి. మన ఛానల్లో తరచుగా కనబడుతూ ఉంటాను. ఇక మన ఛానల్ని స్వామి ఎన్కౌంటర్ సంబంధించి కొన్ని వివరాలు మనకు అందిస్తారు. స్వామి ఆయన స్ఫూర్తి ఇండియా న్యూస్ ఛానల్స్ తరపు నుండి ఈరోజు మనం బీజాపూర్కి సంబంధించినటువంటి గంగులూరు ఏరియాలోకి ప్రజెంట్ లొకేషన్కి మనం వచ్చాం. నిన్న జరిగినటువంటి పోలీసులకి ప్లస్ మౌనిస్టులకు మధ్య జరిగినటువంటి ఎదురుకాల్పులలో నిన్న జరిగిన ఎన్కౌంటర్స్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనం చర్చించడానికి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో చెందినట్లుగా మనకు సమాచారం అందింది. మనం లేటెస్ట్గా ఈ కొద్ది క్షణాలలో మనం బీజాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నాం. అక్కడికి డెడ్ బాడీస్ చేరినట్టుగా సమాచారం ఉంది. మనం అక్కడ నమస్తే అండి. నేను మీ శ్రీనివాస్, జర్నలిస్ట్. ఇంతకాలం డిఎస్ఆర్ హబ్ అండ్ స్ఫూర్తి ఇండియా న్యూస్ ఛానల్స్ ని ఆదరించి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే లైక్, షేర్ చేసి ఎంతో సహకరించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదేవిధంగా నేను ఇక ముందు మన ఛానల్లో తరచుగా కనబడుతూ ఉంటాను. ఇక మన ఛానల్ని స్వామి టేక్ ఓవర్ చేయబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని నిన్న ఏదైతే జరిగిందో మన జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్ సంబంధించి కొన్ని వివరాలు మనకు అందిస్తారు. ఆయన ఫస్ట్ మ్యాక్లో ఏదన్నా తప్పు ఉంటే, ఏదన్నా తన వర్డ్స్ కానీ ఏదన్నా తప్పుగా ఉంటే క్షమించి మీరందరూ నన్ను ఆదరించినట్టే మన ఛానల్లో తనని ఇక ముందు చేయబోయే ప్రత్యేకమైన కథనాలు కానీ, తను చేయబోయేటువంటి స్పాట్ స్టోరీస్ కానీ, ప్రత్యేకమైనటువంటి కథనాలు కానీ మీ యొక్క ఆదరాభిమానాలు ఉంటాయని కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా కొంత లేట్ అయింది. మన కెమెరా ఏదైతే ఉందో చిప్ యాక్చువల్గా ఫెయిల్ అవ్వడం, ఆ రికవరీ పెట్టుకోవడం, ఇదంతా కూడా 2 రోజులు కాలం అంతా కూడా గడిచిపోయింది. అయినా కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి మేము వెళ్ళినటువంటి నేరుగా స్పాట్కి వెళ్ళాం. ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఆండ్రీ అటవీ ప్రాంతంలో, ఛత్తీస్గఢ్, బీజాపూర్ జిల్లా గంగలూరు అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఎన్కౌంటర్ జరిగిందో, ఎన్కౌంటర్ 26 మంది మావోయిస్టు, మరోవైపు ఒక జవాన్ వీరమరణం పొందడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా స్వామి తను మన ఛానల్లో మీకు చూపెట్టబోతున్నారు. నన్ను ఆదరించినట్లే ఇక ముందు స్వామి యొక్క మ్యాక్లేవ్స్ కానీ, తన రిపోర్టింగ్ కానీ, తను ఇచ్చేటటువంటి కథనాలను కానీ ఆదరిస్తారని మరొకసారి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం. నేను మీ స్వామి స్ఫూర్తి ఇండియా న్యూస్ ఛానల్స్ తరపు నుండి ఈరోజు మనం బీజాపూర్కి సంబంధించినటువంటి గంగులూరు ఏరియాలోకి ప్రజెంట్ లొకేషన్కి మనం వచ్చాం. నిన్న జరిగినటువంటి పోలీసులకి ప్లస్ మౌనిస్టులకు మధ్య జరిగినటువంటి ఎదురుకాల్పులలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్స్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనం చర్చించడానికి కరెక్ట్ లొకేషన్లోకి వచ్చాం. ఇక్కడ నుండి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో ఈ సిచ్యువేషన్ జరగడం జరిగింది. సో అతి భయంకరమైనటువంటి ఈ ఎదురుకాల్పులలో 26 మంది మౌనిస్టులు మృతి చెందినట్లుగా మనకు సమాచారం అందింది. మనం లేటెస్ట్గా ఈ కొద్ది క్షణాలలో మనం బీజాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నాం. అక్కడికి డెడ్ బాడీస్ చేరినట్టుగా సమాచారం ఉంది. మనం అక్కడ ప్రెస్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతూ డెడ్ బాడీని గుర్తుపట్టే ప్రయత్నంలో మీ అందరికీ ఆ సమాచారాన్ని అతి తక్కువ సమయంలో మీ ముందు ఉంచడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీ స్ఫూర్తి ఛానల్. మీ స్వామి ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగినటువంటి గంగులూరు ఎన్కౌంటర్లో 26 మంది మౌనిస్టులు చనిపోవడం జరిగింది. 14 మంది లేడీస్ గాను, 12 మంది జెంట్స్ గాను గుర్తించడం జరిగింది. మొత్తం 18 మంది గుర్తులు రావడం జరిగింది. ఇంకా 4 గుర్తించవలసిన ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లు వాళ్ళ డెడ్ బాడీస్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. డెడ్ బాడీస్ బ్లాక్ కలర్ లో జెంట్స్ గాను, వైట్ కలర్ లో జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని మందు సామాగ్రి అనేది దొరకడం జరిగింది. అందులో AK-47 लगातार नक्सली के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही थी। इस सिलसिला में 2 दिन पूर्व जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में थाना गंगलूर अंतर्गत एंड्री, तामोडी, हरा ये 3 क्षेत्र के बीच का जो जंगली इलाका में माओवादी संगठन की
पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी प्लेटून नंबर 13 PLGA कंपनी नंबर 2 एम अन्नी जो फॉर्मेशन का माओवादी कैडर की उपस्थिति का सूचना के आधार पर जिला बीजापुर की DRG बस्तर फाइटर सुकमा DRG STF कोबरा 202 कोबरा 210 एम CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को रात 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलता रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफ़ी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी करके आगे की कार्रवाई की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख के नाम सीतो करती जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है, और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर जिनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणे, बागा, सुक्की पुणे, नंदा, इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है। और बाकी अन्य टोटल 9 प्लेटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। इस इलाका में जैसा सीतो और उसके पति जो जिद्रू है जो प्लेटून नंबर 13 का कमांडर है, कल के मुठभेड़ में अब तक उनका डेड बॉडी तो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, लेकिन उसकी पत्नी जो सीतो जो डिविजनल कमेटी मेंबर है जिनका इलाका में काफ़ी लंबा समय से थोड़ा आतंक थे और भय का वातावरण थे उनके नाम से, और बाकी जो कैडर भी उतने ही मतलब काफ़ी घटना में शामिल होकर इलाका में एक भयभीत माहौल निर्मित करने में उन सबका भी भूमिका थे। इस इलाका में 26 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात उम्मीद है मतलब पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का काफ़ी हद तक उनकी संख्या बल कम हो सकता है। फिर भी शेष माओवादी कैडर के खिलाफ भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि पश्चिम बस्तर डिविजनल इलाका में पूर्ण तरीके से माओवादी गतिविधि को हम समाप्त कर सकता और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा विकास कार्य को भी गति दे सकता। इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG बीजापुर के जवान राजू वयान, उन्होंने वर्ष 2020 से लगातार सुरक्षा बल के साथ शामिल होकर काम कर रहे थे। उनका कल मुठभेड़ के दौरान काफ़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादियों का गोली लगने से उनका स्पॉट में मतलब तत्काल उनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद बाकी अन्य बल सदस्य द्वारा मजबूत मनोबल के साथ पूरा अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और उसका माओवादियों को काफ़ी बड़ी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें वेपन के हिसाब से देखा जाए तो कल काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें AK-47 एक, SLR एक, इंसास एक, 3 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स, और उसमें एक में जो बड़ा लेवल का जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड वाला BGL लॉन्चर भी बरामद किए गए थे, और 312 राइफल जो 12 बोर राइफल, 315 बोर राइफल और IEDs वायरलेस सेट और अन्य जो गैजेट्स और सामग्री भी बरामद की गई थी, जिसका भी डिस्प्ले थोड़ी देर पश्चात आपको दिखाई देगा। और माओवादियों का जो कैडर्स का जो शिनाख्ती जैसा पूर्व में भी बता दिए थे 26 में 18 का शिनाख्ती होगी। बाकी शेष 8 माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई आगे जारी है। और वर्ष 2025 की यदि बात करेगा, अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 97 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई थे। इसमें जिला बीजापुर में सर्वाधिक जो सफलता हमको प्राप्त हुआ, और बाकी जैसा अन्य जिला में भी सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकर, इलाका में भी हमको सफलता प्राप्त हुई। जैसे कल बीजापुर मुठभेड़ के समय दूसरी ओर जिला कांकर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कांकर DRG BSF के संयुक्त अभियान संचालित की जा रही थी थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत। इसमें भी 4 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से एक महिला माओवादी कैडर और 3 पुरुष है। इनका भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है।
शाम तक उनका भी डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। अभी भी उस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है और पश्चिम बस्तर इलाका में भी जो कुछ माओवादी कैडर जो मुठभेड़ के पश्चात घायल होकर मतलब जंगल कार लेकर भागने का जानकारी प्राप्त हुआ, उसका भी हम पतासाजी करवा रहा है और उनका भी ट्रेस करने के लिए आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। दोनों मुठभेड़ सेल बीजापुर और कांकर में जो जैसा मुठभेड़ सेल का परीक्षण से समझ पा रहे थे, माओवादियों का जितना डेड बॉडी जिक्र की तो उससे और भी ज़्यादा संख्या में उनका और नुकसान हुआ होगा, जिसका मारा गया माओवादियों का या घायल माओवादियों का जानी माओवादी कैडर अपने साथ लेकर भाग गई होगा जंगल कार लेकर, उसका भी ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। और वर्ष 2024 और 2025 मिलाकर अब तक लगभग 320 से ऊपर माओवादी कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत बरामद किए गए थे और काफ़ी इलाके में माओवादियों का संगठन का जो पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। इस अवधि में देखा जाए तो विगत 14 महीने की अवधि में हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत 37 नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे। उसमें भी सर्वाधिक जो जिला बीजापुर में कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, मतलब कैंप स्थापित किए गए थे। उसमें प्रमुख रूप से तर्रेम से लेकर पामेड़ तक जो विगत कई वर्षों से जो नक्सल के एक मजबूत आदर्श क्षेत्र के रूप में उसके देखे जाते थे, उस इलाका में जैसे कोराबुट्टा, जुड़पल्ली, वाटेबागू, इन सब कैंप स्थापित करने के पश्चात तर्रेम से लेकर पामेड़ तक पूरा एक्सेस कनेक्ट हो गए थे। इसके फ़ायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा के लेकर और अन्य जितना भी उनका व्यापार है, जैसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का जो उसका सेल्स और के लिए, उसका खरीदी बिक्री के लिए, इन सब काम के लिए ये एक्सेस काफ़ी प्रमुख गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। और दूसरी ओर हम उसूर से लेकर पुस्कुफा तक एक्सेस उसको भी कनेक्ट कर दिए। तो उसमें सबसे लास्ट भीमारम में जो कैंप प्रारंभ किए थे, मलिकंटा भीमारम में, वो कैंप भी विगत 10 दिन पहले स्थापित किए गए थे। उसी कारणवश माओवादियों का जो PLJ बटालियन नंबर 1 और TSC कैडर्स का और CRC कंपनी का और इस दक्षिण बस्तर इलाके का माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाए गए थे। और इन सब कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का साथ साथ जो इलाका में विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी और क्षेत्र की जनता भी ये माओवादी की विगत कई वर्षों से उनकी हिंसात्मक गतिविधि से, उनकी जो विकास विरोधी गतिविधि, आदिवासी विरोधी गतिविधि, इन सब से तंग आ चुकी। इसलिए मन बना लिया माओवादी संगठन के किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं देना, कोई सहयोग नहीं देना। इन सब कारणवश माओवादी संगठन काफ़ी बैकफुट में है। फिर भी हम उनके ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है। उनके साजिश के तहत IED के माध्यम से और किसी अन्य घटनाक्रम के माध्यम से सुरक्षा बल के खिलाफ या क्षेत्र के निर्दोष ग्रामीण के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर सकता है। उन सब विषय को ध्यान में रखकर आने वाले समय में हम और सावधानीपूर्वक और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करें, ताकि शासन के मंशानुरूप आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करना। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर काफ़ी प्रतिबंधित है, जो इस समस्या को बहुत जल्दी समस्या को समाधान करना। साथ साथ क्षेत्र की जनता की भी जैसा इच्छा है उसके तहत हम और समर्पित होकर हमारा सुरक्षा बल सदस्य के सबका मनोबल काफ़ी मजबूत है और जिस तरीके से हमको सफलता प्राप्त हुआ उससे उनका मनोबल और काफ़ी उत्साह है उसमें। उसी के साथ आने वाले समय में और कार्य करेगा, ताकि आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत और खासतौर पर अभी बीजापुर की बात हम कर रहे हैं, इन क्षेत्र में भी हम नक्सल समस्या को समाप्त करके शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको और विकासकारी गति देने में हमको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो सकता है। और कुछ पॉइंट नहीं।